Hello, Standard 10. Welcome to live class again. And all of you know that COVID is spreading again. And this time, along with COVID, we have one unwanted guest. And yes, students, why I call this unwanted guest because I don't want it. Okay? And what its name? It's Omicron that came this time with COVID-19. It's spreading day by day, and situation is very dangerous now. So we decided to run our live classes again because you know that for last two or 3 years we have been facing the problem disturbances like that. And by the way, today's topic is I'm gonna teach you today voices. And what is voices? I told you many times in your offline classes when you used to come to school daily, the voice by sentence, anything we can say in two ways. Number one, active ways, active voice, and second, passive voice. And what is active voice and what is passive voice? When we give priority to any subject of the sentence, that is active voice. We talk in active voice then when we give priority to the subject of the sentence. And dear students, when we give priority to the object of a sentence, that is then we talk in passively, any passive voice. Okay, active is like Anu, cow, is. That is active voice because Anuj is the subject of the sentence and we give priority to Anuj. How we give priority to this? Writing this in the starting in the subject, starting in the sentence. Anuj calls his servant. Anuj is the subject and the right is in the starting of the sentence. Now the verb, his servant is an object. Okay, so we write the object in the last of the sentence and the first of the sentence we write the subject. That is active voice. And how we change it into passive voice? His servant is called by Anuj. That is passive voice. Okay. So now you will know how to change active into passive or how to change passive into active. You may find this in your examination because term first you have given and you have known about this. Okay. So I think 2 or 3 questions you found that in your term first. In term second will be descriptive, you know about that. So learn it very carefully. I will tell you the rules how to change it active to passive and passive to active. Okay. So it depends, it completely depends on your sentences because there are 12 sentences. Okay, 12 type of sentences, that, but we can change just 8 tenses. Okay, and what are the 4 tenses that we cannot change into passive voice? These are present, perfect, continuous, past perfect, continuous, and along with future continuous and future perfect. There are the 4 tenses that we cannot change into passive or active. Okay, in your course, remember it. I'm talking about your course. We can change it in the competition English, right? So these are the 4 sentences that we cannot change. Okay, so I will tell you first of all present indefinite. First of all, you have to know that the sentence is of
प्रेजेंट इंडेफिनिट। लाइक जब आपको यही नहीं पता होगा कि ये जो सेंटेंस है ये कौन से टेंस का है, तो तब तक आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसकी क्या पहचान होती है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कैट्स कैच माइस, बिल्ली चूहों को पकड़ती है। तो देखो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यूज हुआ है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो ये हमारा हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट। ओके, तो इसे कैसे चेंज करते हैं बेटा, इसमें जो रूल्स होता है ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हैं और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना देते हैं, और वर्ब की थर्ड फॉर्म में यूज होता है उसके पहले टेंस के अकॉर्डिंग कोई हेल्पिंग वर्ब भी देनी होती है। जैसे हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की, तो हम उसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब देते हैं, इज एम आर, ये हमें देनी है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हम अभी सिर्फ हेल्पिंग वर्ब लिख देते हैं। हेल्पिंग वर्ब बस वर्ब की मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में यूज किया जाता है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट हम साथ साथ बनाते हैं। तो जैसे माइस में यहाँ लिखा है, तो माइस, अब ये देखो जो माइस है ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, बिकॉज यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे आके अब ये सब्जेक्ट बन गया है। ठीक है, तो माइस जो है ये माउस का प्लूरल होता है। माउस ये एक चूहा होता है, और जो माइस है ये इसका क्या होता है, इसकी प्लूरल फॉर्म है। ओके, तो तुम्हें करना क्या है, माइस इज द प्लूरल सब्जेक्ट, तो हमें इसके साथ में आर का यूज करना पड़ेगा। माइस आर, अब वर्ब के हो गया, अब वर्ब की तरफ लगाओ, कैच की तरफ फॉर्म होते हैं, अब बाई लगा के एजेंट लगा देंगे। एजेंट से मेरा मतलब है जो हमारा पहले सब्जेक्ट हुआ करता था, अब हम उसे एजेंट कहेंगे, क्योंकि अब वो डायरेक्टली काम नहीं कर रहा है, अब हम उसके द्वारा काम करवा रहे हैं, तो हम इससे कह सकते हैं एजेंट। तो माइस आर कॉल्ड बाय कैट्स। ओके बच्चे, तो ये हमारा हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अब जैसे मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि एक टेंस को हम कितनी तरह से बनाते हैं, 6 टाइप्स। ओके, तो ये हमारा पॉजिटिव हो गया, फिर उसके बाद नेगेटिव होता है, फिर उसके बाद इंट्रोगेटिव आते हैं, वो होते हैं 2 तरह के। कौन सा, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप एंड सेकंड इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। तो इंट्रोगेटिव जो फर्स्ट टाइप होता है एक उसका नेगेटिव हो जाएगा, यानी एक पॉजिटिव हो गया, जैसे माइस आर कॉट बाय कैट्स, माइस आर नॉट कॉट बाय कैट्स, ये हो गया नेगेटिव। 2 सेंटेंस हो गए हमारे। थर्ड हो गया इंट्रोगेटिव, जैसे आपको लिखकर भी दिखाता हूँ साथ साथ, जिससे कि आप बेटर समझ सकें। ये आप नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। कोई अनदर सेंटेंस लेते हैं, children like sweets. Okay, sweets are liked by इसका नेगेटिव, sweets are not liked by children। ये हमारा हो गया अफर्मेटिव, ये हो गया उसका नेगेटिव एक, अब दूसरा। ठीक है, अब इंट्रोगेटिव पर आ जाओ। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, जो फर्स्ट इंट्रोगेटिव होते हैं उन्हें किससे स्टार्ट करते हैं, हेल्पिंग वर्ब से। ठीक है, तो आर स्वीट्स लाइक बाय क्वेश्चन मार्क। ओके, अब इसका नेगेटिव आर
sweets not liked by ये हो गया बेटा क्वेश्चन मार्क। तो अभी हमारे दो सेंटेंस हो गए, ये थर्ड हो गया फर्स्ट इंट्रोगेटिव, ये थर्ड हो गया, ये हो गया हमारा सेकंड इंट्रोगेटिव, ये हमारा फोर्थ नंबर हो गया। ओके बच्चों, आप फिफ्थ देखो। फिफ्थ, हाँ मैंने कहा कि फर्स्ट इंट्रोगेटिव था जो हमने अभी सीखा, सेकंड इंट्रोगेटिव किसे कहते हैं, जो कि WS टाइप क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, वाई, वाट, हूम, विच, चाहे हम एक्टिव की बात कर रहे हैं या पैसिव की। सेकंड टाइप के रूल्स वो सेम होते हैं, फर्स्ट टाइप के रूल्स नहीं चेंज होते, इससे पहले क्वेश्चन वर्ड आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, उसी तरह से होता है। तो जैसे वाई आर स्वीट्स लाइक बाय चिल्ड्रन, यहाँ पर समझ लगा हैं, ये हमारा हो गया, ये फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव का नेगेटिव बोलेगा, ये हो गया सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव नंबर 5। ओके, ये हमारा फिफ्थ हो गया। फिर सबसे लास्ट जो है वाई, ये इसका नेगेटिव हो जाएगा, वाई आर चिल्ड्रन not liked, oh my mistake, why are sweets not liked by children? question mark, ये तो सेकंड टाइम नेगेटिव ही है, लेकिन हमारा नेगेटिव है ये 6। तो देखो एक सेंटेंस के हमारे कितने 6 बन गए हैं। ओके, तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। आई होप इसकी आपको दोबारा सुनाने की जरूरत नहीं है। अभी हम नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं जो हमारा होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ओके, देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट में कुछ चीजें एडिशनल होती है, वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे अभी मैंने आपको कहा, अभी मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाया है। अब जैसे आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूं, तो आप इसे कैसे बनाओगे कि यू आर नॉन। अब ये बताओ, हमने कहा था कि एजेड से पहले बाई लगता है, मगर बेटा कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनसे पहले बाई लगा के टू का प्रीपोजिशन टू का यूज करते हैं, ठीक है। यू आर नॉन टू मी, तुम मेरे द्वारा जाने जाता है, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम मेरे लिए नॉन हो, तुम मेरे लिए अननोन नहीं हो, तुम मेरे लिए नॉन हो। यू आर नॉन टू मी, तो यू आर नॉन बाय मी मत लिखना, ये गलत हो जाएगा आपका सेंटेंस। ओके, तो आई नो यू, यू आर नॉन टू मी, ये भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही है। नागे कंटिन्यू और कंटिन्यूअस टेंस। ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूअस देखो आप कैसे बनाएंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो इसमें जो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है वो इज एंड आर होती है। इसमें वर्ब की कौन सी लगती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। किसे कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, जिसे हम आईएनजी फॉर्म कहते हैं। ओके, उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहा जाता है ग्रामेटिकल लैंग्वेज में। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म लगती है, जैसे मैं आपको एक सेंटेंस दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल, रमेश एंड आजू आर in the okay, Ramesh and Arthur are making some disturbance in the class.
तो some disturbance is some disturbance अच्छा is made in the class by Ramesh and Arlo। देखो बेटा यहाँ कंटिन्यूटी दिखाने के लिए हमने क्या इस बीइंग लगा दिया है, इस बीइंग। ओके, तो अभी देखो सम डिस्टर्बेंस तो इस आ गया। अगर सम डिस्टर्बेंसेस अगर हम लिखते हैं सम डिस्टर्बेंसेस तो फिर क्या लिखते हैं, आर लगाते हैं। ओके, अब दूसरा सेंटेंस आप देखते हैं तो आपको क्या लगाना है, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कंटिन्यूटी दिखाने के लिए जब यदि आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पैसिव में चेंज कर रहे हैं तो आप क्या करोगे, इज एम आर के साथ बीइंग लगा देंगे। बहुत ही इजी है क्योंकि आपको इसमें अलग से कोई हेल्पिंग वर्ब ऐड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इसकी एक्टिव वॉइस में इज एम आर आएगा। आपको सिर्फ जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है अब वो इधर पैसिव में सब्जेक्ट बन जाएगा तो उसके नंबर के अकॉर्डिंग, उस सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग आपको इज एम आर लगा के बीइंग लगा देना है। ठीक है, जैसे अनदर सेंटेंस देखिए, Manju is calling her mother। ओके, तो her mother is being called by मंजू। ये हो गया हमारा अल्फाबेटिक। हमने क्या किया है, being called लगा दिया है। हम मतलब is being called by मंजू। ये हो गया आपका पैसिव वॉइस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। अभी आपको जैसे मैंने प्रेजेंट डेफिनेट में एक सेंटेंस के 6 बनाकर दिखाए थे उसी तरह से आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी, जैसे मैंने प्रेजेंट डेफिनेट में दिखाया था उसी तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी आपको 6 अपने अकॉर्डिंग बनाने हैं, अपने इंटेलिजेंस से बनाने हैं, किसी की हेल्प नहीं लेनी है। अभी हम आगे बढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ। ओके, इसमें क्या होता है, इसमें तो हैज हैव आता है और वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। किसे कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल, जिसे हम यूजुअल लैंग्वेज में वर्ब की थर्ड फॉर्म कहते हैं, जिसे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहा जाता है ग्रामेटिकल लैंग्वेज में। ओके बेटा, तो यहाँ इसका एक एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ। आई हैव डन माई वर्क, आई हैव डन माई वर्क, माई वर्क। अब देखो वर्क तो सिंगुलर है। ओके, तो माई वर्क हैज बीन डन बाई मी। आई को चेंज करते हैं, मी में जब पैसिव में लिखते हैं आई को किस में चेंज करते हैं, मी में बाय मी, और बी को अस, बाय अस। ठीक है, तो माय वर्क हैज बीन डन बाय मी। इसी तरह से आपको दूसरे सेंटेंसेस दिखाता हूँ इसके, जैसे दे हैव रिटन सम articles. They have written some articles means some articles have been written by them. Some articles have been written by
देन। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो चाहे कोई भी टेंस हो, सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज किया जाएगा। ओके, बस चेंज क्या होना है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, साथ ही वर्ब की थर्ड फॉर्म, और हेल्पिंग वर्ब भी चेंज होनी है, बाकी वर्ब की थर्ड फॉर्म सेम रहती ही है। ओके बच्चों, ठीक है। मैं इसी सेंटेंस पे आपको 6 बनाकर दिखाता हूँ। ये कुछ दूसरा सेंटेंस हम लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का। ओके, द पुलिस हैज कॉट द थीफ। चोर ने पुलिस को पकड़ लिया है। ओके, तो आप देखें, द थीफ हैज बीन कॉट बाय द पुलिस। अभी आप एक बात पे जरा गौर करिए, जो सामान्य सी बातें होती हैं, जो यूजुअल सी बात है, हमारा चोर पकड़ा जाएगा तो चोर किसके द्वारा, पुलिस के द्वारा ही पकड़ा जाएगा। तो आप चाहे तो उसमें से एजेंट हटा सकते हैं, आप चाहे तो एजेंट रिमूव कर सकते हैं, और यहीं आप फुल स्टॉप दे दीजिएगा। जैसे द थीफ हैज बीन कॉट, चोर पकड़ा गया है। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं। जैसे सेम सेंटेंस में आपको बेटा एक और यहाँ देता हूँ, जैसे someone has stolen my watch, किसी ने मेरी वॉच चोरी कर ली है। तो इसे हम चेंज करेंगे पैसिव में, my watch has been stolen by someone। मगर मैंने आपसे क्या कहा, आप चाहे तो एजेंट को रिमूव कर सकते हैं, और यहीं आप स्टोल लगा के सेंटेंस बयान कर सकते हैं। दैट मीन्स माई वॉच हैज बीन स्टोलन, मेरी घड़ी चोरी कर ली गई। तो अपेरेंटली जाहिर है कि चोरी किसी चोर ने ही की होगी। माई वॉच हैज बीन स्टोलन, मेरी घड़ी चोरी हो गई है, चोरी कर ली गई है। तो बाय समवन ये भी लिखने की जरूरत नहीं है आपको, अब चाहे तो दे सकते हैं एजेंट बाय लगाकर, चाहे तो इस तरह के सेंटेंसेस में नहीं भी दे सकते हैं। तो ये आपका हो प्रेजेंट, सारा प्रेजेंट हमने किया, प्रेजेंट डेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट, कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होता है। सो बी प्रिपेयर्ड एट योर होम, तैयारी करते रहिए अपने बोर्ड एग्जाम सेकंड टर्म के लिए बेटा। इफ यू हैव एनी क्वेरी, यू नो, लेट मी टेल यू दैट आई थिंक ऑन मंडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू एप्लीकेशन। I don't remember its name now, but if you have any queries, we will take live sessions. Okay, we will take live session. If you have any queries, you can ask in the live classes, you know. Okay. By the way, ये वीडियोस बिल्कुल मिस नहीं करना है, सभी को प्रिपेयर्ड रहना है एग्जाम के लिए। ओके, बाय।